Hi guys, welcome to Cricket Caviar, and today we are going to discuss about the World T20 matches again, and also a little bit of controversy involving the BCCI and PCB. इसमें प्रतीक पता है मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ हाँ कि जय शाह ने दिखा दिया कि वो एक अव्वल दर्जे का मतलब आई एम सेइंग इट पब्लिकली बट ही इज एन इडियट एंड द आई मीन he's really embarrassing India on a world stage by uh, by behaving and giving statements out like this, and it really paints a poor image of the Indian society and Indian democratic values that we hold very uh, dear to ourselves. So let's just look at what transpired, matlab to give you an idea. Uh, so I'll just share my screen. So this is what happened actually. So if you see this, if you read through this line, it shows that Amit Shah is Amit Shah's son Jay Shah, who is the secretary of BCCI. He has told the Asia Cup is in 2023, will be held at neutral venue, and I'm saying this as ACC president. So he's the president of Asian Cricket Council, and he's telling this as ACC president. We can't go there. They can't come here. In the past, also Asia Cup has been played at neutral venue, and this has been decided without any discussion. And actually, he was one of the uh, presiding officers when they actually awarded this Asia Cup to Pakistan. He was involved in that decision making. एंड अब वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, अब तो हम न्यूट्रल वेन्यू में खेलेंगे एशिया कप। अब तो क्या मतलब हम तो वहां जा ही नहीं सकते, तो इट विल बी एट न्यूट्रल। एंड द मोस्ट शॉकिंग थिंग इज दिस नॉट एन इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट बट अ वेल कोऑर्डिनेटेड स्टेटमेंट, बिकॉज रॉजर बिनी एंड राजीव शुक्ला, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ बीसीसीआई, राजीव शुक्ला जो हमेशा हर बोर्ड प्रेसिडेंट के साथ चिपक जाता है, वो भी उनके साथ थे. They were present when Shah spoke to the media. The ACC has not met yet to discuss the matter, and that has raised questions within PCB as to which capacity Shah was speaking. Matlab, was he? And this was at a BCCI meeting that he actually gave this statement. This yeah is not an Asian Cricket Council meeting. तो इट सीम्स मतलब कि ये यूनिलैटरली बस इन्होंने बात करके एक स्टेटमेंट दे दिया रैंडमली विदाउट which is डिस्कसिंग unfair. विद Yeah, पीसीबी, विदाउट डिस्कसिंग विद एनी स्टेक होल्डर्स. मतलब उन्होंने बस एक रैंडम स्टेटमेंट दे दिया, और पीसीबी का एक एम्फैटिक रिप्लाई आया विच आई रियली लव्ड, एंड दिस शोज द जेन्युइननेस ऑफ पीसीबी एक्चुअली एंड पेंट्स बीसीसीआई इन सच अ बैड लाइट. PCB has noted with surprise and disappointment of yesterday's comment made by ACC President Mr. Jay Shah. The comments were made without any discussion or consultation, and without any thoughts towards their long-term consequences and implication. After having presided over the ACC meeting during which Pakistan was awarded the Asia Cup with overwhelming support and response from ACC board members. तो जैसे कि इसमें एशियन कंट्रीज के बीच में एक डिवाइड हो जाएगा, एशियन कम्युनिटीज के बीच में एक डिवाइड हो जाएगा, और हो सकता है पाकिस्तान बॉयकॉट कर दे 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इंडिया में होने वाला है. तो मतलब कि ये तो एक बहुत ही वैसे फार फेच स्टेटमेंट है, क्योंकि वर्ल्ड कप से हाँ उनको काफी रेवेन्यू मिलता है. दे विल नॉट बी नहीं, सीरियसली they will थिंकिंग not do अबाउट. that, but yeah, I mean, it's very disappointing. Especially, I heard another thing that India will be touring Pakistan for the Champions Trophy, which is going to happen in 2024 or 2025. उसमें ऐसा बोलते हैं will go there because it's an ICC tournament. But basically they're trying to say कि ये एशिया कप है तो मैं कंट्रोल करूंगा कि मैं जाऊंगा कि नहीं. तो यहाँ पे ऐसा सिक्योरिटी का मैटर भी नहीं है. अगर ऐसा है कि भाई वी आर कंसर्न अबाउट देयर प्लेयर सिक्योरिटी, बोलते हैं कि आईसीसी का टूर्नामेंट है तो हम चले जाएंगे, बट अभी वी कैन कंट्रोल इट, वी कैन शो लाइक वी आर एरोगेंट, वी आर बिग गन्स, तो अभी हम नहीं जाएंगे. इट डजंट मेक एनी सेंस. या तो तुम मत जाओ, या तो तुम मत जाओ, या अब और जा रहे हो तो तुम ऐसे सेलेक्टेड टूर्नामेंट में कैसे जा सकते हो मतलब. एंड एंड I mean, England and Australia, everyone has toured Pakistan now, so it doesn't make sense to again bother PCB by saying that neutral venue में कराओ. तो या एंड हम लोग तो फैंस तो कब से इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट सीरीज भी देखना चाहते हैं यार. ऐसी चीजें होंगी तो दैट इज नॉट गोना हैपन इन आवर लाइफ टाइम.
या और अब एक मीटिंग होने वाला है एसीसी का. पाकिस्तान हैज रिक्वेस्टेड फॉर एन इमरजेंसी मीटिंग ऑफ द एसीसी एंड होपफुली ये इससे कुछ रेजोल्यूशन निकले एंड होपफुली ये सब बस एक मिराज रह जाए और जय शाह अपना इडियोटिक जो कर रहा है वो उससे वो बाहर निकले एंड या एवरीथिंग इज होपफुली मतलब कि इंडिया ट्रैवल करे पाकिस्तान बिकॉज ऑल अदर दादा का टीम्स आर क्या नॉट. चल रहा है? दादा बीसीसीआई के साथ नहीं है क्या? आई नहीं हैव नॉट सीन तो हिम. इसमें लिखा है ना कि सो गांगुली हैज ऑलरेडी लेफ्ट his position as BCCI, and this was the annual general meeting where actually the transfer of power happened. So now Roger Binney, he's is the new BCCI president, who ओके. won the World Cup for India in या 1983 as a fast bowler, and now Saurav Ganguly is going to be contesting the uh, Cricket of Bengal Association, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल इलेक्शन. और इसमें एक ESPN क्रिकेट इन्फो में एक आर्टिकल भी आया था कि हाउ डिसअपॉइंटिंग हैज बीन गांगुलीज टेन्योर, क्योंकि उसका कोहली के साथ जैसा रिलेशनशिप रहा वेयर बोथ ऑफ देम वेर एक्चुअली कॉलिंग ईच अदर लायर्स इन द मीडिया, जो कैप्टनसी इशू रहा. तो या उस पे भी मुझे लगता है ये जय शाह का काफी फॉल्ट है ये सब में. मुझे लगता है कि जय शाह इज रिस्पॉन्सिबल एंड ही इज द वन हु इज रूइनिंग इंडियन क्रिकेट. तो मुझे पता नहीं इसका टेन्योर कब तक रहने वाला है और इसको क्यों नहीं रोटेट कर रहे हैं, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट्स को रोटेट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों. या या Anyway, एक्चुअली. let's move to the T20 World Cup now. And today, I'm presenting this image of actually इसमें जॉर्ज डॉकरेल का इमेज ज्यादा फोकस आया है एंड बट द हीरो ऑफ द मैच टुडे वाज कर्टिस कैम्फर. So Pratik, what's your view about this match since you watched this match quite closely? या man, I can say like ये पूरा मैच 35 overs तक it was like Scotland written all over it. Curtis Camphor, man, amazing, what a player. I saw him in 2020 जब कोविड के बाद पहला सीरीज हुआ था इंग्लैंड में. It was just like a three ODI मैच सीरीज, तब भी कर्टिस कैम्फर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था. आयरलैंड एक्चुअली वन ऑफ द मैचेस एंड उसमें कर्टिस कैम्फर मैन ऑफ द मैच था. उसके बाद थोड़ा बीच में इन एंड आउट था साइड में, बट ही इज सच अ गुड प्लेयर. आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि कैप्टन एंडी बाल्बर ने उस पर ज्यादा फेथ क्यों नहीं दिखाता इवन इन बॉलिंग. उसको सिर्फ 2 ही ओवर्स दिए कल. ही वॉज द टॉप बॉलर. But man, like the required 100 was like 12 or something, man. Like it's and ऐसा नहीं है कि ये इंडिया में मैच हो रहा है जहाँ पे 1200 मैनेज हो जाता है. So playing that kind of a knock in the end, and both Dockrell and Curtis Camphor and taking their side home, it speaks volumes. And I think now Ireland, I can see that they can go to the next Super 12 stage. और सबसे बड़ी बात है इस मैच का, मतलब मैंने जो फॉलो किया ये मैच का, आई ओनली सॉ द हाइलाइट्स बट Scotland were dominating throughout the match and like you Mm-hmm. rightly said कि 9.3 overs में 61 for 4 थी Ireland and they had lost Sterling Tector, the two of their main batsmen. Main, And yeah, उसके बाद like no one expected. Curtis Camphor is actually an all-rounder and when you said yeah. actually about him, so I was reading about him and I found that he's also from South Africa and he has an Irish passport and yeah, so he chose to play for South Africa and like you said, he was instrumental in that England series winning one of the games. और Yeah, लास्ट T20 वर्ल्ड कप के जो प्रीलिम्स में he actually took a World Cup hat trick, which was held in Oman. yeah. That I did not know. Yeah. He took a World Cup hat trick last year itself and और पता है वर्ल्ड कप हैट्रिक्स का इतना, ये मैं कार्तिक मेयप्पन के हैट्रिक के बाद देख रहा था. एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पहला वर्ल्ड कप हैट्रिक जो था T20 वर्ल्ड कप में वो 2007 में था जो ब्रेट ली ने लिया था Kenya अगेंस्ट against केन्या. it. और Yeah, yeah. उसके बाद इतने सारे एडिशंस हुए, मतलब 6 एडिशंस हो चुके हैं. बट द नेक्स्ट वर्ल्ड कप हैट्रिक, T20 वर्ल्ड कप हैट्रिक केम इन 2021 एंड इट वाज कर्टिस कैम्फर who took this hat trick. So after, Oh, wow. yeah, so this was quite a surprising thing. And then after Curtis Camphor took the hat trick, Vanindu Hasaranga also took a hat trick last year. Last time, yeah, yeah. Yeah. So ये एक स्पेशल प्लेयर है and he delivered a special performance. 119 required in 57 balls, 60 balls, and he just they actually completed the target 1 hour spare. One over, 1 hour was 1 hour left. before. That's Yeah. amazing. 8 ओवर में 90 रन चाहिए थे.
मतलब इनके हाँ 12 ओवर में 80 कुछ थे, 87 कुछ था इनका, और 6 ओवर में 65 चाहिए थे। ठीक हाँ। है, 14 ओवर में ये आई लोग थिंक जॉश 120। डेवी को तो पेल दिया इन लोगों ने, और बहुत बुरा, हमारा बहुत हीरो बुरा। मार्क वॉर्ड भी नहीं चला कल। हाँ, जो वो बस एक अपना काम डाउन वाला, आई एम हियर वाला सेलिब्रेशन किया था, लेकिन Yeah. उसके बाद उसको बहुत, बट जॉश डेवी को जैसे 4 ओवर्स में 46, तो आई थिंक जॉश डेवी को उन्होंने टारगेट किया, ब्रैडली व्हील को बहुत बुरा मारा। और मतलब कि Yeah. एक ओवर था मैंने देखा जिसमें उन्होंने शायद 17 रन ले लिए जॉश डेवी का, वो गेम चेंजिंग ओवर काइंड ऑफ था। आई थिंक दैट वाज द हाँ 16th ओवर, जब उनको 5 ओवर में 58 चाहिए था, और 4 ओवर में सडनली 35 ऐसे कुछ हो गया, 52 से करेक्ट 4 ओवर में 35 हो गया। राइट, 35 वाज डूएबल या। बट बट या आई मीन स्कॉटलैंड की भी तारीफ करनी पड़ेगी, माइकल जोन्स जो नए प्लेयर हैं उन्होंने हाँ। स्कॉटलैंड की तरफ से रिकॉर्ड बना दिया, हाईएस्ट स्कोरर फॉर स्कॉटलैंड इन वर्ल्ड कप्स। और हम्म, उसकी इनिंग्स बहुत ही ब्यूटीफुल थी, जब भी शॉर्ट बॉल डाली उसने हम्म, सिक्स के लिए पुल कर दिया, एक शॉट दो शॉट आउट ऑफ द ग्राउंड भी गए, एंड बहुत ही अच्छी इनिंग्स थी। ही स्टार्टेड रियली स्लो, ही टुक द एंकर रोल, बट हम्म, व्हेन ही गॉट टू 20 उसके बाद से ही टुक द फिफ्थ केयर। एंड या, बैरिंगटन ने बहुत अच्छी नॉक खेली थी उसको सपोर्ट करते हुए। हम्म, बट या ओवरऑल स्कॉटलैंड ने एक्चुअली बहुत अच्छा स्कोर बनाया, तो मेरे को नहीं लगा था कि 175 समथिंग चेज होगा, इवन दो यू नो देयर आर प्लेयर्स लाइक स्टर्लिंग हु आर वेरी डेंजरस। 10 ओवर के बाद तो सोचा ही नहीं था कि आयरलैंड कैन स्टिल पुल दिस ऑफ। yeah, सो it was very surprising to see Scotland play at that rate. एंड वो मतलब रिचर्ड बेरिंगटन और जो जोन्स की आई या बैटिंग, मतलब कि अमेजिंग दैट पार्टनरशिप। एंड या हाउ दे, आई थिंक वो लोग लास्ट ओवर में थोड़ा और 10 5 6 रन और बना सकते थे, बट आई थिंक, या लास्ट 2 ओवर में दे ओनली मेड 15 रन्स, उसके लिए 25 कुछ आते तो टारगेट फिर अनएसेसेबल हो जाता। बट अगेन मैन आई थिंक नेक्स्ट 10-15 मैचेस तक भी ये हाईएस्ट चेज रहेगा 175। अभी देखना कुछ हाँ। मैचेस तक और तो अब इट्स नॉट इजी टू चेज बिग टोटल्स इन ऑस्ट्रेलिया। और जोन्स इज नाउ द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट, ही हैज ओवरटेकन एब्सोल्युटली राजा या सिकंदर रजा now. So I'll move to the next match of today, and the star man Alzarri अल्जारी Joseph. जोसेफ। Alzarri Joseph is going to be the highest wicket taker. अभी से ही हम predictions में डाल देते हैं कि मैं क्योंकि सोच रहा था उसके बारे में। आज उसने 4 विकेट तो ले ही लिए हैं, एंड ही वाज वेरी नियर टू अ बट भाई कल फाइफर ऐसे एक्चुअली। चमीरा का परफॉर्मेंस देख के भी लगा था कि उसको भी डाल दो शीट में, इन दोनों को ही डाल देते, जो दो नाम लिख सकते हैं ना। नहीं, वैसे तो हसरंगा का भी चांसेस है एक्चुअली। मैंने उबेद बट मैकॉय आई का स्टिल इस थिंकिंग अबाउट हसरंगा सेलिब्रेशन और लास्ट विकेट लेने का। मैंने ओबेद मैकॉय का नाम लिया, बट उसको विकेट्स ही नहीं मिल रहे, बट आज उसने शॉन विलियम्स का विकेट लिया, एटलीस्ट एक विकेट लिया उसने। बट जिम्बाब्वे से बहुत होप थी यार मेरे को, स्पेशली टारगेट इतना बड़ा नहीं था, सो हाँ, यू ये नो। इनिंग्स पहले तो आज मैं एक चीज बताना चाहूंगा, वेस्ट इंडीज टुक अ वेरी ब्रेव कॉल, दे ड्रॉप ब्रैंडन किंग हु वाज प्लेइंग ओके ओके, मतलब कि ठीक ठाक खेल रहा था, एंड दे एक्चुअली पुट जॉनसन चार्ल्स इनटू देयर ओपनिंग लाइनअप। हु इज अ वेरी अग्रेसिव बैट्समैन या। और भाई, जॉनसन चार्ल्स इज द ओनली मेंबर ऑफ बोथ द वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स ऑफ 2012 एंड 2016 who's actually in this part of this West Indies team today. एंड व्हाट एन इम्पैक्ट ही हैड, मतलब 45 उसने मारे 36 बॉल्स में, और उसको रॉवमैन पॉवल ने रन आउट करा दिया एक्चुअली, मतलब अगर वो बहुत एम्बेरेसिंग रन आउट था, मतलब वो। भाई आई बीन वेरी अपसेट विद रॉबमन पॉवेल, उसने आईपीएल के बाद से जितने भी बायलैटरल सीरीज हुए सब में हगा है, उसने कुछ भी स्कोर नहीं किया। एंड कल एक्चुअली उसकी जो रीसेंट परफॉर्मेंस सबसे अच्छा मैच था, 29 कुछ बनाया एटलीस्ट, बट अरे इसको रन आउट नहीं करना चाहिए था। नहीं नहीं, रॉवमैन पॉवल का इनिंग्स एक्चुअली काफी क्रूशियल था, मैं अभी बता रहा हूँ क्या हुआ। तो वेस्ट इंडीज दे एक्चुअली गॉट अ गुड स्टार्ट पावर प्ले में बिकॉज ऑफ जॉनसन चार्ल्स, इवन दो सिकंदर रजा पिक्ड आउट ऑफ नोवेयर, मतलब कि सिकंदर रजा ने 3 विकेट ले लिए। आई और न्यू उसके इट मैन, वो बॉलिंग से भी मैच जिताएगा मुझे पता था, बट ये नहीं पता था कि इमीडिएटली आफ्टर हिज फर्स्ट मैच में पूरा बैटिंग एंड सेकंड में बॉलिंग, 19 फॉर 3 इन 4 ओवर्स, अमेजिंग। और सुन, 14 ओवर में वेस्ट इंडीज का स्कोर था 101 फॉर 6। 14 ओवर में वेस्ट इंडीज वेर 101 फॉर 6, एंड 6 आउट हो देन गए। देन अकील हुसैन विथ रॉवमैन पावल। एंड हाँ। रॉवमैन पावल ने भी आज 109 मीटर का कुछ छक्का मारा, और अकील हुसैन वो शॉक्ड आफ्टर सीइंग दैट 6 का एक वीडियो है, तू देखना बाद में।
और रॉवमैन पावल ने जो इनिंग्स खेला ना, वो 5 ओवर में इन्होंने कुछ 50 ऐड कर दिए, और उसके बाद एंड ओडियन ने एटलीस्ट कुछ कर नहीं पाया। लास्ट 2 बॉल के लिए आया था ओडियन स्मिथ, वो कुछ कर नहीं पाया। बट 152 का टारगेट था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात अब आने वाला है, जिम्बाब्वे वेर 29 for 0 इन 2 overs। 2 overs में देवे 29 for 0। ओके। तो टारगेट कितना बचा? 120 बचा बस 18 ओवर में। हाँ, 120 बचा 18 ओवर में भाई। आई वाज शॉक्ड, मतलब कि यहाँ और उसके बाद आया है अलजारी, द मशीन गन, द मिसाइल गन। और उसने सबसे पहले तो आउट किया वेस्ली माधेवेरे को, नहीं वेस्ली को नहीं, द अदर ओपनर को आउट किया उसने, जो आई थिंक वो उनका कैप्टन था, रेगिस चिबागवा को आउट किया। चकामा। हाँ, या चकाबवा, रेगिस चकाबवा को आउट किया। और उसके बाद उसने एक यॉर्कर डाला, एक टोनी करके एक प्लेयर को इन्होंने भेजा था पावर प्ले में मारने के लिए। उसको उसने ऐसा यॉर्कर डाला, मतलब कि इट वाज ऑन द मिडिल स्टंप एंड 140 km/h, एंड टोनी मेड ओनली 2 out of 6, विच स्लोड देम डाउन अ लिटिल बिट। और उसके बाद तो उसने भाई जो बॉलिंग किया है अल्जारी ने, मतलब दैट वाज, फिर जिम्बाब्वे स्लिप टू 58 for 4 आफ्टर दैट। एंड ऑल होप्स वेर ऑन सिकंदर रजा राजा आफ्टर दैट, कि एक वही छक्का कुछ। भी मारा था आके उसने। हाँ। हाँ, वो बट ओडियन स्मिथ, जब हमारा महा पहलवान ओडियन स्मिथ आया तो उसको उसने एक छक्का मारा, बट नेक्स्ट बॉल पे ही वो आउट हो गया। एंड यहाँ पे मुझे लगता है एक और चीज जो मैंने हाईलाइट से कैच किया, वो था कि जिम्बाब्वे का फील्डिंग, उन्होंने 2 कैच ड्रॉप किए कवर्स में, और एक जॉनसन चार्ल्स का, एक रॉवमैन पाउल का। मतलब ये 2 कैचेस जो ड्रॉप हुए वो बहुत क्रूशियल हो गए। और क्योंकि ये दोनों रन बनाए। या हाँ, इन दोनों ने ही हाँ। रन्स बनाए। और फिर जिम्बाब्वे, ऑब्वियसली लूक जोंगवे ने थोड़ा बहुत लास्ट में होप रखा हुआ था या जिम्बाब्वे के लिए, बट मैन जोंगवे अच्छा प्लेयर है यार, मतलब वो बैटिंग भी बढ़िया कर लेता है। इनफैक्ट लास्ट मैच में भी उसका स्ट्राइक रेट 200 था, इसमें भी यार, उसने। वो कौन सा बॉलर था जो मैंने तुझे इंडिया जिम्बाब्वे की सीरीज के टाइम बोला था कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग स्टार? वो तो खेल ही नहीं रहा है यार, वो भाई जो। लूक जोंगवे को ही बोला था तूने? नहीं नहीं नहीं, तभी तो लूक डेब्यू हुआ जोंगवे था को नहीं उसका। बोला था। नहीं नहीं, वो दूसरा ओ, था यार। एक और था, एक और था यार, वो क्यों नहीं है हाँ स्क्वाड में? ठीक था। हाँ, वो स्क्वाड में नहीं है, और ये भी स्क्वाड में नहीं है यार। वो एवेंस जो था, जो अच्छा बैटिंग करता था टेलेंडर्स के साथ, हाँ, इवेंस, इवेंट्स, हाँ। वो भी नहीं है। मैन शॉकिंग सिलेक्शन, और वो पता नहीं क्यों हम्म, माधवेरे को खिलाते। बैटिंग में बहुत बहुत सारे ऐसा प्लेयर्स है जो बहुत एवरेज परफॉर्मेंस कर रहे हम्म, हैं। बॉलर्स अच्छे हैं जिम्बाब्वे के, या हाँ। और बैटिंग में तो मैंने बिल्कुल ऐसा बोल दिया है कि हाँ, हम लोग 10-10 रन जोड़ेंगे, बाकी राजा अगर अच्छा 50 मार देगा तो हम जीतेंगे, अदरवाइज हम्म, रह जाएगा। हम्म, हाँ, जिम्बाब्वे का बैटिंग अभी तक काफी पुअर रहा है। मतलब आज तो 2 overs में 29, मतलब इतना बड़ा स्टार्ट मिलने के बाद भी, मतलब आई थिंक उन्होंने यूएई कल। के बाद सबसे पुअर बैटिंग जिम्बाब्वे का ही है, इफ यू थिंक अबाउट इट। हम्म, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, सबका बैटिंग अच्छा है। हाँ। हाँ, होल्डर और मैकॉय ने भी अच्छा बॉलिंग किया आज। एंड मतलब ठीक है। क्या मतलब, आई अब मीन राइट नाउ। वेस्ट इंडीज बाय द वे वेर सेलिब्रेटिंग वेरी पैशनेटली टुडे। एंड बाद में या अलजारी ने बोला कि इट वाज लाइक अ फाइनल फॉर अस। और मैं आज क्रिक इन्फो में एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि अलजारी बहुत बार मैच विनिंग परफॉर्मेंस देता है लेकिन टीम हार जाती है। ये उसके साथ 2-3 बार हो चुके हैं। बट हाँ, और टुडे कुछ लोग उसको बोल रहे थे कि टेस्ट मैच के लिए फिट है, आप कॉटरेल को लाओ, बट नहीं, अलजारी ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द टीम। सो एंड एक्चुअली देखा जाए शिखर, तो जिम्बाब्वे फर्स्ट मैच पूरा राजा के दम पे जीती थी, तो अगर देखा या जाए इस ग्रुप में सबसे कमजोर टीम कौन सी है, तो जिम्बाब्वे है, अब लग रहा है 2 मैच देखने के बाद। तो लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल नाउ। तो अब नेदरलैंड्स नामीबिया, ये तो कल डिसाइड हो जाएगा कि भाई इसमें से भाई कौन है। नेदरलैंड श्रीलंका को हरा दे तो मजा आ जाएगा। हाँ, और यूएई नामीबिया को फिर हरा दे तो और मजा आ जाएगा फिर तो भाई। फिर नेदरलैंड्स और नामीबिया चले या जाएंगे, मैन। बट दैट इज क्वाइट अनलाइकली। एंड और अब ये वाला जो ग्रुप ऑफ डेथ है, ग्रुप बी, और यस, इसमें अगर जो भी जीते, जो भी 2 टीम्स जीतेंगे, सो इट्स अ दे विल सिंपल मेक इट। सिंपल या सेमीफाइनल, यू कैन एटलीस्ट से। इट्स सिंपल, यहाँ पे कोई एनआरआर का कोई लोचा नहीं है कोई नहीं है, इधर। मतलब जो भी 2 टीम्स जीतेंगे, एंड वो हो जाएगा। एंड ओनली एनआरआर का सीन आएगा अगर बारिश वारिश हो गया, तब एनआरआर का सीन आएगा, वरना कोई एनआरआर का सीन नहीं है। और यहाँ पे मुझे अगर तुझे चुनना हो, तुझे प्रेडिक्ट करना हो, तो हु विल यू गो विथ इन द ग्रुप बी?
ग्रुप ऑफ डेथ। ग्रुप बी, ठीक है। तो अभी एक मैच बचा है, वो है जिम्बाब्वे बॉलिंग वर्सेस स्कॉटलैंड बैटिंग में देखा जाए तो। एंड दूसरा वेरी मैच है टफ। वेस्ट इंडीज आयरलैंड, जो जिनका एक्चुअली अगर तुम लास्ट 10 मैच का रिकॉर्ड देखो तो वेस्ट इंडीज एंड आयरलैंड का काफी नेक टू नेक चलता है। ऐसा नहीं है कि वेस्ट इंडीज डोमिनेट करती है। तो वाओ मैन, इट इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज। एनीथिंग कैन हैपन, बट वेस्ट इंडीज बॉयज अगर फॉर्म में आ जाए तो दे आर द साइड हु हैज वन द वर्ल्ड कप द मोस्ट। तो अभी मुझे लग रहा है वेस्ट इंडीज, क्योंकि उन्होंने लाइक जो थोड़ा फायर अप हो चुके हैं। एंड आई एम गोना पिक स्कॉटलैंड, मेरे को लग रहा है स्कॉटलैंड विल बाउंस बैक। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो तुझे नहीं लग रहा कि कर्टिस कैम्फर के मोमेंटम को आयरलैंड कंटिन्यू करेगी? और एनीवे स्कॉटलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे में मुझे भी थोड़ा स्कॉटलैंड लग रहा है आज के परफॉर्मेंस के हाँ, बाद। देख के मुझे भी थोड़ा स्कॉटलैंड उनका लग रहा है। बैटिंग काफी सॉर्टेड लग रहा है, ऐसा लग रहा है फिर से 150 प्लस तो हम्म, पोस्ट कर ही देंगे। और जिम्बाब्वे का वही वीकनेस है कि वो चेज कर पाएंगे क्या। जिम्बाब्वे को बस ब्लेसिंग बचा सकता है। ब्लेसिंग कैन ओनली सेव हाँ, जिम्बाब्वे। तो या बहुत इंटरेस्टिंग बट होगा अगेन इट विल बी, फ्राइडे। आई थिंक बोथ गेम्स विल बी क्लोज मैन, या लाइक दे विल फाइट। सो या अच्छा सिनेरियो है बाकी। या अनफॉर्चुनेटली ग्रुप ए में तो यही लग रहा है, बहुत प्रोबेबल है कि नामीबिया एंड श्रीलंका विल बी थ्रू। सो या नामीबिया श्रीलंका एंड एग्जैक्टली 2021 में भी ये दोनों टीम्स थ्रू हुए थे अपने ग्रुप से। एंड द अदर टू टीम्स वेर ऑब्वियसली स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड विच गॉट थ्रू द अदर ग्रुप। सो या लेट्स सी कि इस बार क्या होता है। इंटरेस्टिंग रहेगा। आई एम बैकिंग स्कॉटलैंड एंड वेस्ट इंडीज आयरलैंड में आई एम एक्चुअली मोर कंफ्यूज बिटवीन वेस्ट इंडीज एंड आयरलैंड। तो वेस्ट इंडीज एंड आयरलैंड इज, या पता नहीं जॉनसन चार्ल्स को because both teams got very good wins yesterday. So I am actually going with I am actually going with both upsets. I am going with Scotland and Ireland. देखते हैं क्या होता yes. है। भाई मजा आ जाएगा। स्कॉटलैंड एंड हाँ, आयरलैंड टू क्वालिफाई yeah. फ्रॉम दिस ग्रुप। तो लेट्स सी तो व्हाट फिर वही हो हैपेंस। जाएगा, 2021 वाले 4 टीम सेम हो जाएंगे अगर स्कॉटलैंड आयरलैंड होते भाई हैं सही में। तो। और अच्छा भी होगा, मतलब दैट विल प्रूव दैट इट वाज नॉट अ फ्लूक लास्ट ईयर, मतलब या कि। तो बाय द वे कल ग्रेट। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, वार्म अप मैचेस नहीं हो पाया। मैंने स्पेशली शमी को मैं देखना चाहता था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट थोड़ा बॉलिंग करते हुए। हाँ, और ब्रिस्बेन में भी आज पूरा दिन बारिश हुआ और तीनों मैचेस ब्रिस्बेन में ही था जैसे हमने डिस्कस किया या था। और अभी तो मेलबर्न में भी रोज बारिश हो रही है, तो इंडिया दैट्स पाकिस्तान वेरी मैच भी काफी दैट्स वेरी वरिंग। डेंजर इंडिया लगता पाकिस्तान है की मुझे। मैच के लिए रिजर्व डे होना चाहिए यार। हाँ बट ठीक है बट कल एनीवेज। एक चीज देखने को मिली कि अफगानिस्तान ने बैटिंग अच्छी करी। आई मीन दे एट एक टाइम पे लग रहा था कि 110 ऐसा कुछ ऑल आउट हो जाएंगे, बिकॉज अदर टीम में यू हैव शाहीन, नसीम, रौफ। बट उन लोगों को भी अच्छा मारा मोहम्मद नबी ने एंड उस्मान घानी, जो अब लग रहा है कि सेलेक्ट हो सकता है अपने 11 में कल के परफॉर्मेंस और के बाद। शाहीन इज बैक टू हिज प्राइम नाउ। तो मुझे लग रहा है अब इंटरेस्टिंग रहेगा इंडिया पाकिस्तान। अरे वो गुरबाज को जो यॉर्कर टो क्रशर दिया, आई डोंट नो इफ he'll बी एबल टू प्ले द नेक्स्ट मैच। ही वाज क्वाइट इन सम पेन लाइक आफ्टर दैट डिलीवरी। अब वो इंजरी से बट या मैं वापस आके दूसरों को यॉर्कर्स आर इंजर्ड बैक। कर रहे हैं। अब दूसरों को भाई इंजर्ड किंग कर रहे हैं यॉर्कर्स वो। डाल रहा है वो। खुद से वो आ गया इंजरी से वापस, अब दूसरों को इंजर कर रहे हैं वो। तो anyway, Pratik, will cap off this discussion. Also, want to remind all of you that please join our fantasy contest. The link will be I'll be sharing again today. The code. This is going to be throughout the World Cup, starting from Saturday when the World Cup kicks off with Australia versus New Zealand. So join and we'll have a special award for the winner of this fantasy. So या we will be paying out of our pockets, I think mostly. So या it will और be हम वीकली अपडेट देते रहेंगे कौन लीडर बोर्ड में लीड कर रहा है वैसा। yes, yes. सो उसका तो पूरा एनालिसिस करेंगे हम लोग कि भाई कौन क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं एंड वो सब हम करेंगे और हम भी खेलेंगे साथ साथ, तो मजा या आएगा। सो यू हैव अ चांस टू बीट अस एज वेल। या यस, हमको बीट कर देंगे वैसे लोग, हम इतने कोई बहुत बड़े प्लेयर नहीं है। भाई बाय द वे आकाश चोपड़ा ने आज कर्टिस कैम्फर को कैप्टन बनाया था। भाई मैं सुन के ही शॉक्ड हो गया। वो अपना फैंटेसी अनबिलीवेबल, उसका एक अनबिलीवेबल। उसका एक टेलीग्राम चैनल है बाय द वे एंड वो रोज अपने फैंटेसी टीम शेयर करता है। तो उसने कर्टिस कैम्पर, बट वेस्ट इंडीज वाले मैच में उसने एविन लुइस को शायद बनाया था, तो उसका कुछ हुआ नहीं। बट हाँ ठीक है। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे एंड प्लीज लेट अस नो इन योर कमेंट्स व्हाट्स योर व्यू ऑन जय शाह एंड बीसीसीआई एंड also keep following and subscribing our channel. Thank you and see you again. Bye Pratik. थैंक्स शेखर, थैंक्स फ्रेंड।